Hello everyone. Today I am going to teach you a very interesting and a very important concept, that is consumer protection. Students, please pay complete attention while watching the video. So students, before teaching you what is consumer protection, I want to tell you for what consumer protection is all about, why we need it. So students, here you can see a picture of Bata showroom and the picture of Bata carry bag. So students, what actually happened, few months ago one person purchased a pair of shoes costing rupees 399 from a Bata shoe store located near his house, and the store charged rupees 402, which also included the cost of bag. Student, this was completely not acceptable and was deficiency in service, so the person decided to take it to the court, and he approached to Chandigarh Consumer Commission and filed the complaint against the Bata store. And there he contested that Bata charged him for the bag and was also endorsing its brand name on the bag, which was not justified. पर्सन ने कहा कि बाटा जो है वो हमसे बैग के लिए चार्ज कर रहा है, विच वॉज कम्प्लीटली अ डिफिशियंसी इन सर्विस, और वो अपना ब्रांड नेम जो है बैग पे इंडोर्स कर रहा है, विच वॉज नॉट जस्टिफाइड. सो द Chandigarh Commission slammed Bata for charging an additional amount for the paper bag, and in its decision directed Bata India Limited to refund the cost of the bag, that is rupees 3, and to pay rupees 9,000 in fine for charging from customers for a paper bag to carry the shoe box. So students, जो केस मैंने अभी आपको बताया ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है बहुत सी प्रॉब्लम्स का जो कि कंज्यूमर फेस करते हैं, या तो किसी भी गुड्स या सर्विस को खरीदते टाइम, या कभी किसी गुड्स या सर्विस को यूज़ करते टाइम, या कभी किसी गुड्स या सर्विस को कंज्यूम करते टाइम. स्टूडेंट्स, this case also highlights the need for an appropriate legal protection to be provided to consumers to protect them from various forms of exploitation from the sellers. यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा नीड है कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने की फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशंस ऑफ द सेलर्स. सो स्टूडेंट्स, इन चीज़ों की वजह से ही हमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन की नीड है. स्टूडेंट, जस्ट टू सेव गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स, consumer protection is needed. So student, consumer protection refers to the protecting the interest of the consumer. consumers के interest को protect करने के लिए ही consumer protection बना है. Students, according to marketing concept, a consumer is said to be the king of the market. इसका मतलब सारी एक्टिविटीज़ जो है मार्केट में वो कंज्यूमर के अराउंड रिवॉल्व करती हैं. कंज्यूमर अगर पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड करेगा तो प्रोडक्शन होगा, जब प्रोडक्शन होगा तो फिर आपकी जीडीपी भी इंक्रीज़ होगी. तो मतलब सारी चीज़ें जो हैं वो कंज्यूमर के ही डिमांड पे रिवॉल्व करती हैं. कंज्यूमर जो है वो किंग है मार्केट का. अगर कंज्यूमर को कोई प्रोडक्ट पसंद नहीं आता है तो वो उसे परचेज़ नहीं करेगा, वो कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट परचेज़ करेगा. अगर किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस राइज ज़्यादा है तो वो उस कंपनी का प्रोडक्ट ना यूज़ करके कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट यूज़ करेगा. सो स्टूडेंट, वी कैन सिंपली से डैट कि कंज्यूमर जो है वो मार्केट का किंग है. स्टूडेंट्स, अर्लियर अप्रोच ऑफ केवियट एम्पटर लेट द बायर beware has now been changed to caveat venditor let the seller beware. Students, still it is being observed that with the growing competition and in attempt to increase their sales market share, जो आपके मैन्युफैक्चर और जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, they may be tempted to engage in immodest, exploitative and unfair trade practices which ultimately affect consumers. आपके जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, वो सेल्स को इंक्रीज़ करने के लिए, मार्केट शेयर को अपने इंक्रीज़ करने के लिए इमोडेस्ट, एक्सप्लॉयटेटिव, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करते हैं, जैसे कि डिफेक्टिव और अनसेफ प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करना, अडल्ट्रेशन करना, फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स प्रेजेंट करना, होर्डिंग करना, ब्लैक मार्केटिंग करना. स्टूडेंट्स, दिस ऑल माइट एक्सपोज टू रिस्क टू द कंज्यूमर्स. ये सारी चीज़ों जो हैं वो कंज्यूमर को रिस्क कर सकती हैं. अगर वो कोई भी अनसेफ प्रोडक्ट या अडल्ट्रेटेड फूड प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, देन दे माइट सफ़र फ्रॉम बैड हेल्थ ड्यू टू दीज अडल्ट्रेटेड फूड प्रोडक्ट्स.
Students, they might feel cheated because of misleading advertisements or the sale of spurious products. Student, consumer may have to pay higher prices when sellers are engaged in overpricing, hoarding, or black marketing, etc. So, student, with this, I want to say that there is a need for providing adequate protection to consumer against such practices of the sellers. इसीलिए हमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन की ज़रूरत है. स्टूडेंट्स, कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज़ ऑल अबाउट प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स. कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन होता है, जिससे कि आप कंज्यूमर को प्रोटेक्ट कर सकें सेलर की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से, एक्सप्लॉयटेटिव प्रैक्टिसेस से आप कंज्यूमर को प्रोटेक्ट कर सकें. स्टूडेंट्स, the area of consumer protection has emerged as a very important area of study. This have significance for both the consumer also, the businessman also. कंज्यूमर को भी इम्पॉर्टेंस होती है इसकी, और स्टूडेंट्स, कंज्यूमर प्रोटेक्शन ना खाली कंज्यूमर के लिए इम्पॉर्टेंट है बल्कि बिजनेसमैन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है. यहाँ पे दोनों के लिए ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है. कंज्यूमर प्रोटेक्शन में आपके राइट्स आते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं और वेरियस रेमेडीज़ आती हैं जो कि कंज्यूमर के लिए अवेलेबल होती हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स, वी हैव सम पॉइंट्स जो कि आपको बताएंगे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है वो कंज्यूमर के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है और बिजनेसमैन के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है. सो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम दोनों से ही इम्पॉर्टेंस पढ़ेंगे, कंज्यूमर से भी, बिजनेसमैन से भी. बट फर्स्ट आई विल टीच यू अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम द कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू. कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंस है कंज्यूमर प्रोटेक्शन की. सो द फर्स्ट पॉइंट इज कंज्यूमर इग्नोरेंस. सो स्टूडेंट्स, कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है उन कस्टमर्स को जिनको अपने राइट्स और रेमेडीज़ के बारे में पता नहीं है. स्टूडेंट्स, ऐसे बहुत से लोग होंगे अभी भी जिनको कंज्यूमर के राइट्स और रेमेडीज़ के बारे में अवेलेबल जो भी हैं रेमेडीज़ उनके बारे में पता नहीं है. सो बेसिकली कंज्यूमर प्रोटेक्शन का क्या कहना है, इट इज़ ऑल अबाउट स्प्रेडिंग नॉलेज टू द कंज्यूमर्स सो डैट दे कैन नो अबाउट वेरियस रिड्रेसल एजेंसीज वेयर दे कैन अप्रोच टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट. स्टूडेंट, जैसे मैंने अभी आपको एक केस जो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया उसमें हमने आपको बताया कि उस पर्सन को अपने राइट के बारे में पता था और उन्हें ये पता था कि ये जो बाटा जो मुझसे एक्स्ट्रा पैसे चार्ज कर रहे हैं बैगेज के लिए और उस बैगेज पे उनका खुद का ब्रांड लोगो है, उसके लिए वो हमसे चार्ज कर रहे हैं, तो इट इज़ कम्प्लीटली अगेंस्ट द लॉ. सो इसके लिए उन्हें अपने राइट्स के बारे में पता था और वो तुरंत ही रिड्रेसल एजेंसी के पास गया और उन्होंने कंप्लेंट फाइल की. सो ऐसे स्टूडेंट बहुत से लोग होते हैं जिनको राइट्स और रेमेडीज़ के बारे में नहीं पता होता है अपने. सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन का कम्प्लीटली ये कहना होता है वो अवेयरनेस स्प्रेड करना चाहता है जिससे कि कंज्यूमर को अपने राइट्स के बारे में पता चले, रेमेडीज़ के बारे में पता चले, उन्हें उन रिड्रेसल एजेंसीज़ के बारे में पता चले जहाँ पे वो जा कर के अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. ओके, सो स्टूडेंट, majority of consumers are not aware of their rights release available to them as a result of which they are exploited. उनको अपने rights और remedies के बारे में नहीं पता होता है, इसीलिए वो exploited होते हैं. So in order to save consumers from exploitation, consumers protection is needed. consumer को exploitation से बचाने के लिए ही consumer protection बना है. Okay, so second point from consumers viewpoint is unorganized consumer. So students, बहुत सी ऐसी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जैसे कि इंडिया जिसमें कंज्यूमर्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज नहीं है. कंज्यूमर्स जो हैं वो अभी भी अनऑर्गेनाइज्ड है और वहाँ पे कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस की बहुत कमी है. अगर आपके कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस होंगे तभी कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बहुत ज़रूरत है. अगर वहाँ पे कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस होंगे, वहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशंस होंगे तो वो कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करेंगे. स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऐसे बहुत से कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं. कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है वो इनकरेज करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा और कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश किए जाएं जिससे कि कंज्यूमर के राइट्स को, कंज्यूमर के पावर्स को
सामने लेकर के आया जाए, जिससे कि कोई भी सेलर, कोई भी मैन्युफैक्चरर जो है वो कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट ना कर पाए। स्टूडेंट्स, कंज्यूमर प्रोटेक्शन प्रोवाइड पावर्स एंड राइट्स टू दीज ऑर्गेनाइजेशंस एज दीज ऑर्गेनाइजेशन कैन फाइल केस इन बिहाफ ऑफ द कस्टमर्स। कस्टमर्स के बिहाफ पे ये जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ये केस फाइल करते हैं और कोशिश करते हैं कि कंज्यूमर जो हैं वो उनको इंसाफ मिले और ये जो भी सेलर्स हैं, जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो उनसे एक्स्ट्रा पैसे चार्ज ना कर पाए। ओके, विद दिस स्टूडेंट वी हैव अनदर इम्पॉर्टेंस ऑन फॉर कंज्यूमर, दैट इज़ वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर्स। सो स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं कंज्यूमर जो है वो किंग पिन है मार्केट का, पर अभी भी कहीं कहीं पे बहुत ढेर सारी एक्सप्लॉयटेशंस प्रैक्टिस की जाती हैं कंज्यूमर्स के ऊपर। जैसे कि स्टूडेंट, रिसेंटली मैंने एक न्यूज़ में देखा था कि मुंबई का एक शगुन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है, उन्होंने 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज किए कंज्यूमर से ऑन एबव एमआरपी जो था वो 165 का था, बट शगुन रेस्टोरेंट ने 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज किए थे पर्सन से। एक ग्राहक थे, उनके पास आइसक्रीम लेने आए थे फैमिली पैक का, और उन्होंने 165 का एमआरपी था, बट 10 रुपये उनसे एक्स्ट्रा चार्ज किया। और उन्होंने जब इस चीज़ का इनकार किया तो उन्होंने कहा कि ये कूलिंग चार्जेस हैं। सो कुछ बिजनेसमैन जो हैं वो ऐसी एक्सप्लॉयटेटिव चीज़ें करते हैं जो कि कम्प्लीटली जो है वो बिज़नेस एथिक्स के ख़िलाफ़ हैं। सो इन सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट करने के लिए कंज्यूमर को कंज्यूमर प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन कंज्यूमर के साथ बढ़ता जा रहा है, उतना ही कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। सो स्टूडेंट्स, कंज्यूमर्स आर एक्सप्लॉयटेड ऑन लार्ज स्केल बाय मीन्स ऑफ वेरियस अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन। सो स्टूडेंट्स, वेरियस अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की वजह से कंज्यूमर जो है वो चीटेड फील करता है, एक्सप्लॉयटेड फील करता है। इसी वजह से कंज्यूमर प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो हेल्प करती हैं कंज्यूमर को अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने ये बताया कि क्यों कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है वो कंज्यूमर्स के लिए बेनिफिशियल है। नाउ आई विल टीच यू व्हाई कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम बिजनेस मैन्स पॉइंट ऑफ व्यू। बिजनेस मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन इम्पॉर्टेंट क्यों है। सो स्टूडेंट, बिजनेस जो है वो सर्वाइव तभी कर सकता है लॉन्ग रन में जब वो कंज्यूमर के इंटरेस्ट को इग्नोर ना करे। कंज्यूमर जो है वो किंग पिन है मार्केट का, जैसा कि हम सब जानते हैं, और अगर हमको बिज़नेस को लॉन्ग रन में रन कराना है, लॉन्ग रन के लिए रखना है, तो हमें बिज़नेस के इंटरेस्ट को कंज्यूमर के इंटरेस्ट को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। Businessmen should give due importance to consumers if they want to prosper in competitive market. So students, consumer protection provides some benefits to businessmen also. तो देख लेते हैं क्या है। So first point is long term business interest. So student, जैसा कि हमने आपको ऑलरेडी बोला था, अगर बिजनेस को लॉन्ग रन के लिए हमको ले करके जाना है तो हमें कंज्यूमर्स को ज़रूर सामने रखना चाहिए, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, कंज्यूमर के इंटरेस्ट के ही अकॉर्डिंग चीज़ें करनी चाहिए। स्टूडेंट्स, जब से आपका लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी आई है, आपका जो कंपटीशन का लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ना सिर्फ इंटरनली बट इंटरनेशनल कंपटीशन भी आपको फेस करना पड़ता है। सो स्टूडेंट्स, इन द रेस ऑफ दिस कंपटीशन बिजनेसमैन कैन विन एंड कैप्चर द बिग शेयर ऑफ द मार्केट ओनली when they are able to satisfy their customers. They can design the products according to the needs and the requirements of the customers. वो कस्टमर्स जैसा चाहते हैं वैसा प्रोडक्ट बनाएं, वैसी सर्विसेज प्रोवाइड करें, तभी वो मार्केट में टिके रह सकते हैं और मार्केट में बहुत दिन तक का रह सकते हैं और मार्केट में बिग शेयर कैप्चर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, बिजनेसमैन जो इग्नोर करते हैं कस्टमर्स का इंटरेस्ट को, कस्टमर्स को सेटिस्फेक्शन नहीं प्रोवाइड करते हैं अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज से, उनकी गुडविल जो है वो धीमे धीमे करके ख़त्म हो जाती है। सो स्टूडेंट, इट इज़ एन इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस इटसेल्फ टू कीप इट्स कस्टमर सेटिस्फाइड। अगर कस्टमर्स को आप सेटिस्फाइड रखेंगे, कस्टमर्स को निराश नहीं करेंगे एक्सप्लॉयटेटिव ट्रेड प्रैक्टिसेस करके, तो डेफिनेटली बिजनेस जो है वो लॉन्ग रन में सर्वाइव करेगा। ओके
Students, with this we have another importance to business, that is moral justification. So students, what is there? It is the moral duty of any business to take care of consumer interest and avoid any form of their exploitation and unfair trade practices. So स्टूडेंट्स, ये खाली बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं इम्पॉर्टेंट है, ये मॉरली और एथिकली भी इम्पॉर्टेंट है कि आपको कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए. बिजनेस का सबसे बड़ा रोल होता है एथिक्स को फॉलो करना. इथिक्स या मॉरल वैल्यूज़ जो हैं वो प्रैक्टिस की जाती हैं बिजनेसमैन के थ्रू, जिससे कि बिजनेस में ग्लोरी आ पाए, जिससे कि बिजनेस की गुडविल इंक्रीज़ हो, बिजनेस की रेपुटेशन इंक्रीज़ हो. स्टूडेंट, आजकल के इन्वायरमेंट में बिजनेस जो है अगर बिना एथिकल वैल्यूज़ के है तो उसको क्रिमिनल एक्टिविटी ही माना जाता है. और जहाँ पे आप कंज्यूमर के लिए ये सारी प्रैक्टिसेस करेंगे, एक्सप्लॉइट करेंगे, उन्हें इममॉडेस्ट वे में ट्रीट करेंगे, सो इससे क्या होगा? इट इज़ कम्प्लीटली विदाउट एनी एथिकल वैल्यूज़. सो आपको ना केवल कस्टमर्स को बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करना है, बल्कि उनकी सारी डिमांड्स को फुलफिल भी करना है, जस्ट टू बी इन द मार्केट. इट इज़ जस्ट अ मॉरल जस्टिफिकेशन दैट यू शुड नॉट प्रोवाइड unsafe product, defective products to the customers और provide adulterative products. ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है. ओके, सो इट इज़ अ complete moral duty of the business. With this we have another importance from the business point, that is business uses resources of the society. So student, business जो है वो रिसोर्सेज सोसाइटी के यूज़ करते हैं. वो जो भी प्रॉफिट अर्न करते हैं वो सिर्फ सोसाइटी के मेंबर्स को गुड्स और सर्विस सप्लाई करके ही करते हैं. अगर कस्टमर्स उनके प्रोडक्ट और सर्विसेज खरीदना बंद कर दें तो बिज़नेस जो है वो मार्केट में सर्वाइव ही नहीं करेगा. आपको आपके एम्प्लॉयज़ वगैरह भी सब सोसाइटी से मिलते हैं. आप एम्प्लॉयज़ को सैलरी देते हो और बाद में आपके जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं वही आपके गुड्स और सर्विस खरीदते हैं. अगर वो सोसाइटी के मेंबर्स आपके गुड्स और सर्विस ना खरीदें तो क्या होगा? अल्टीमेटली आपका बिजनेस जो है वो बंद हो जाएगा. सो इट इज़ अ कंप्लीट ड्यूटी ऑफ द बिजनेस टू डू समथिंग बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी. बिजनेसमैन जो है वो ट्रस्टी होते हैं रिसोर्सेज के, एंड दे मस्ट यूज़ दीज रिसोर्सेज फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द कंज्यूमर्स. आपके बिजनेसमैन जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सोसाइटी के इंटरेस्ट के लिए वर्क करें. ओके, विद दिस वी हैव अनदर इम्पॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम बिजनेसमैन्स पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज़ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो स्टूडेंट्स, क्लास 11th में आपने ऑलरेडी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पढ़ा था और वहाँ आपने पढ़ा था कि बिज़नेस की कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं वेरियस ग्रुप्स के लिए, टूवर्ड्स वेरियस ग्रुप्स, जैसे कि ओनर्स हो गए, वर्कर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गए, कस्टमर्स हो गए. ओनर्स को उनको टाइम पे डिविडेंड्स प्रोवाइड करने, वर्कर्स को उन्हें सैलरी देनी है, गवर्नमेंट को उनको टाइमली टैक्स देना है, टैक्स इवेजन नहीं करना है, और कस्टमर को उनको बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करना है, बेटर उन्हें ट्रीट करना है. सो कस्टमर जो है वो किंग पिन है मार्केट का. सो कस्टमर्स की तो उन्हें ड्यू केयर रखनी ही चाहिए. बिजनेसमैन की कुछ ना कुछ सोशल ऑब्लिगेशंस हैं कस्टमर्स के लिए भी, और कस्टमर्स जो है वो इन सारे वेरियस ग्रुप्स में सबसे इम्पॉर्टेंट है. सो इट इज़ अ कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेसमैन टू प्रोवाइड क्वालिटी goods, quality products or services at reasonable prices. Students, consumer protection guides businessmen to provide good social responsibilities to do better for the society, okay, better for the customers. With this we have another importance of consumer protection from businessman point of view, that is government intervention. So student, गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज़ नॉट गुड फॉर द बिजनेस. स्टूडेंट्स, अगर बिजनेस अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करेगा तो गवर्नमेंट उसमें कुछ ना कुछ एक्शन लेगी जो अल्टीमेटली बिजनेस की गुडविल को अफेक्ट करेगी. सो स्टूडेंट्स, इफ बिजनेस मैन वॉन्ट टू अवॉइड इंटरवेंशंस ऑफ गवर्नमेंट देन दे शुड नॉट इन्वॉल्व इन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, बिकॉज if government intervene then it will spoil the image of the business. So students, businessmen should voluntarily involve in the activities which protect the interest of the consumers. So student, I hope आपको
कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो कंज्यूमर प्रोटेक्शन का, कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्यों इम्पॉर्टेंट है कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी. So students, please go through your book, read it from there, and if you still have any query, any doubt regarding this particular concept, please ask your queries to me. And students, if you find my video helpful, please like my video, share it with your friends, and subscribe to my channel. Okay, thank you.